Yes, so today the session is on legal due diligence. So the aspects which I'll cover in this session will be firstly, what is legal due diligence and why is it required to be done and its importance. And after that, it is the process, how it is done and what all are the types of what all are the types of due diligence which are required to be conducted in various types of transactions. Firstly, I would like to tell that legal due diligence is a legal practice where there is no law pertaining to legal due diligence till date. So basically, the ways may differ from person to person and from organization to organization, which is conducting the legal due diligence. So, what is the need of legal due diligence in today's world? So today, in today's commercial world where legal processes have increased so far and there are so many transactions which are taking place across the globe between different organizations. Like there's mergers of companies, there's acquisition process of various movable and immovable properties. So there are huge amounts involved in these transactions. And basically the restructuring which takes place when there is a merger or acquisition, which brings huge internal changes in the organization. And obviously, there are huge risks involved in the process. So that is why, in order to take an informed decision to see that whether there are any risks involved in the process, it is very necessary to know what all are the loopholes involved in a particular transaction. So that's why legal due diligence is conducted, basically. So legal due diligence, basically, it is a process through which all the information is accessed of a particular organization in detailed manner. The next round which we will go is like whom the task is assigned to. Since most, I believe this all the participants today are the lawyers or law students mostly. So that is why I am just concerning legal due diligence in this session. I am just covering legal due diligence. So the task is mostly assigned to law firm or an individual lawyer who is specialized in conducting legal due diligence. And such lawyers are mostly assisted by their clerks or certain agents who may have contacts with all the necessary people required to, from whom the information will be required to be extracted for the process of due diligence and to draft a detailed report in this process. So next field in this, I would like to cover is the checklist. This is the preparation stage, initial stage of legal due diligence. So the checklist differs from what kind of transaction is taking place between two entities or two people, basically. So checklist will be the prerequisite thing, which will be prior to conducting of legal due diligence process. So at the preparation stage, generally a team of lawyers is appointed for any legal due diligence in a particular law firm or under the chamber or of a particular lawyer. So at the preparation stage, basically the target organization that is about whom the legal due diligence is required to be conducted. The and there is the acquirer. So acquirer is the person who mostly appoints lawyers for conducting a legal due diligence because he needs to know what are the risk areas involved in a particular transaction. So that is why a team of lawyer first of all studies the entire project as to what is required to be done in a particular project and what is the subject area of the transaction. So taking into consideration all these aspects, a particular questionnaire is prepared at the initial stage that what all documents will be required from the target company or organization in respect of the subject which is required to be conducted due diligence about. So a checklist is prepared accordingly and all the documents are required to be provided by such target company. And after that, every document is analyzed, all the documents are studied in details, and thereafter a detailed report is framed. And at the same time, all the loopholes are which are there in a particular in the subject of the transaction which are involved, all the risk areas, they are studied accordingly. So after this,
after this is the preparation stage. All the documents are studied very nicely, properly, and thereafter various other things which are there that I'll cover later on. So first of all, I would like to go in the process of conduction of legal due diligence as to what all documents are required to be studied when the legal due diligence happens, like in respect of and whether it is a company or an IP. Mostly legal due diligence takes place regarding immovable properties. Then if it is a commercial transaction like merger of two companies or certain things, it pertains to a company. Then in respect of that, what are the steps involved in the legal due diligence? Then there is also legal research or legal due diligence for an intellectual property, that is like our trademarks, then patents, copyrights, designs, etc. Then also there are litigations involved at times, so they also require to be analyzed accordingly as to आगे क्या होगा, like in particular litigation. So let's begin from the process of conducting legal research of a company. Mostly legal research of a company happens when there is a acquisition happening of particular company shares or share capital by another company. Then merger process, that is combining two companies into one, that is like business restructure basically. So after that, it may involve any other like transaction between two companies, like collaboration for a particular purpose. So for this, the acquirer company, which is going to own other company or going to do restructure or going to collaborate with a company, will be required to have a detailed information of such company, right? So the legal firm, a law firm which is appointed for the purpose, first of all collects all the data of such company. So where is this data available? Basically, there is a Ministry of Corporate Affairs where all the public documents of the company are uploaded, like memorandum of association, then articles of association, incorporation, the most important document for a company, certificate of incorporation, which is provided by the Ministry of Corporate Affairs. Either it can be under the previous old Companies Act of 1956 or the latest one, that is Companies Act 2013. So all these documents are required to be studied accordingly. So in memorandum of association, basically it is all the fundamental data of the company as to what are the objectives of the company, what are the liabilities of its promoters, the initial subscribers, etc. And the article of association is basically rules and regulations of the company. So like which provides all the duties of its directors, shareholders, their voting rights, etc. So all these are studying accordingly. Then there is a balance sheet. You have to check the balance sheet of the, which is like, what do you say? The balance sheet of the last financial year, which is uploaded on the website of Ministry of Corporate Affairs. That is required to be examined accordingly. Either a lawyer can do it or a CA can do it. That depends on the person who is appointed for the legal due diligence process. Then there are many other things which are required to be checked in respect of the company, like what is the work culture of that company, its goodwill in the market. Then there are also shareholder agreements which require to be studied, the term sheet which is there involved for the shareholders or stake and the stakes, etc., liabilities. If the company goes through any losses, then whether there are any HR issues involved in, like any workers or of the company or employees which have any issues with the company, their trade unions if it is a factory. तो ये सब भी देखना पड़ता है, like because in case issues, if there is any issue, then usually कोई बड़ी company doesn't take the risk. क्योंकि अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया कल को तो इस कंपनी को उसका like they will have to compensate for the same. So that these are the risks involved. So these required to be studied accordingly, taking into consideration बाद में जो decision होगा वो company ले लेगी. So this was for the company. Then thereafter, I would like to cover process of conducting legal research of an IP, that is intellectual property.
दैट इज मोस्टली ये सब फैशन डिजाइनर्स या ऐसे कोई फिल्म प्रोड्यूसर्स होते हैं जो दूसरे फिल्म के राइट्स ले लेते हैं एक्सेट्रा. फॉर देम दिस इज ऑफ इम्पोर्टेंस बिकॉज आईपी मोस्टली इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो कि मोस्टली क्रिएटिव फील्ड्स में काम आती है. क्रिएटिव फील्ड में जो लोग इन्वॉल्व है उनके. So like detailed information of a target company and IP which is subject of the transaction is researched upon अच्छे से कि like with the of course with the website of trademark registry जो कि I think for the state of MP, Goa and Maharashtra it is located here somewhere in Vadala in Mumbai I guess. And it is mostly एक ही ट्रेडमार्क रजिस्ट्री रहती है. ज्यादातर 3-4 स्टेट्स की ट्रेडमार्क रजिस्ट्री जो भी आईपी रजिस्ट्री होती है वो एक ही होती है. So that you need to check on the website of IP. So on this website, you have to just click and check the history of the trademark as to exactly uska, first of all, whether it is registered with the IP, it is legal, kuch uska, if there is any litigation involved with it. फिर litigation रहता है तो IP registry में there is also a tribunal kind of है वो, एक छोटू सा कोर्ट रहता है अंदर. So they check कि like अंदर ऑफिसर से चेक किया जाता है कि कोई इसमें litigation involved है, risk involved है. So you have to visit mostly legal due diligence वाले visit करते हैं IP trademark registry के office में. So after that you have to also check कि class कौन सा है उस IP का. There is a particular class. I mean every IP is categorized, especially trademark is categorized into particular category of class. जैसे electronics का class अलग होता है, for other kinds of items class अलग होता है. It is like that. डिजाइन्स के लिए कुछ और रहेगा, ऐसा प्रोविजंस रहते हैं अलग अलग. सो दैट दे हैव टू चेक एंटायरली. उसके बाद फिर एनी कॉन्ट्रैक्ट्स दैट आर इन्वॉल्व किए ट्रेडमार्क या पेटेंट किसको पहले असाइन हुआ था, फॉर हाउ मच पीरियड ऑफ टाइम, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा स्टडी किया जाएगा अकॉर्डिंगली. तो ये सब देखना पड़ता है एंड अकॉर्डिंगली डिसीजन होगा वेदर इज ट्रेडमार्क और पेटेंट इज वर्दी ऑफ लाइक बीइंग एक्वायर्ड. So accordingly decision लेते हैं after when they the law team of lawyers submit an title report to the other team which is going to acquire the trademark or patent or whichever intellectual property obviously. And after that, after IP there comes immovable property and process of conducting legal research of an immovable property. ये mostly this is a basic one. सबसे ज़्यादा immovable legal due diligence का scope is in the process of immovable property. क्योंकि immovable property obviously it is there since years और there are various things, बहुत झोल involved होते हैं basically immovable properties में ज़्यादातर. So detailed information of immovable property which are subject are procured verified by studying land's history. तो उस लैंड की हिस्ट्री जैसे कैसे डिवॉल्व हुआ फ्रॉम A to B to C to whichever person आगे. बिकॉज अ प्रॉपर्टी मोस्टली आजकल सब लैंड्स होते हैं वो मोस्टली बहुत पुराने होते हैं. सो उसका आई गेस लिमिटेशन इन द प्रॉपर्टीज एक्ट कुछ 30 years का होता है इफ इट इज गोइंग अंडर एनी लिटिगेशन और समथिंग लाइक लिमिटेशन पीरियड आई एम टॉकिंग अबाउट. तो इसके वजह से एटलीस्ट पास्ट 30 years की हिस्ट्री इज डिजायर्ड या फिर उससे भी पहले की होती है कुछ लैंड्स की, तो इट रिक्वायर्स टू बी स्टडीड जब से भी अवेलेबल हो. सो लाइक उसके बाद उस लैंड के बाकी डॉक्यूमेंट्स एग्जामिन किए जाते हैं जैसे सेल डीड हो गया, फिर कोई लीव एंड अगर वो लैंड किसी को रेंट पे दिया तो उसका लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट या रेंट एग्रीमेंट देखा जाता है, एनालाइज किया जाता है. देन देयर आर आल्सो लीजेस इन्वॉल्व. लीज एग्रीमेंट देखे जाते हैं कि उसमें कुछ रिस्क तो इन्वॉल्व नहीं है, कितने साल के लिए लीज की थी, कोई ड्यूज पेंडिंग है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो ये सब फैक्टर्स कंसिडर किए जाते हैं. देन देयर आर आल्सो एनवायरमेंटल कंसर्न्स इन्वॉल्व हियर कि वो लैंड किसी इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन में तो नहीं आता है, कोई एनवायरमेंटल कंप्लायंस तो बाकी नहीं है लैंड का. then even any certificate of the land is usually checked, that is like non-agricultural certificate, because agricultural land pe you cannot like construct a building or something. So any certificate is required to be checked. Then जो प्रोजेक्ट बनने वाला है whether that project is registered under RERA, आजकल तो रेरा भी आ गया है, that is a regulatory frame for all the buildings and constructions newly which will be going to be built.
सो रेरा के अंडर भी उसका क्या है स्टेटस वो भी चेक करना पड़ता है, वेदर द प्रॉपर्टी इज क्लियर फ्रॉम ऑल द एनकम्बरेंसेस एक्सेट्रा। फिर राइट टू इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में भी चेक किया जाता है इन द म्यूनिसिपैलिटी और विच एवर अथॉरिटी। तो सब भी चेक करना पड़ता है आरटीआई के अंडर, वेदर इट हैज ऑल द कंप्लायंस, सब सर्टिफिकेट्स है, पर्टिकुलर कोई बिल्डिंग है, अगर कोई फ्लैट ले रहा है फॉर प्रॉपर्टी, जैसे मिडिल क्लास लोग मोस्टली एक फ्लैट लेते हैं, तो उसके लिए भी देखना पड़ता है वेदर दैट बिल्डिंग इज लीगल, तो उसका कमेंसमेंट सर्टिफिकेट है या नहीं, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट द मोस्ट इम्पोर्टेंट है या नहीं। अगर ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट होता है ना जिस बिल्डिंग का, दैट इज 99% लीगल, तो ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट देखना पड़ता है स्पेशली फॉर द फ्लोर ऑन विच यू आर गोइंग टू परचेज अ फ्लैट। तो ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट रहता है। फिर इफ यू आर परचेसिंग अ फ्लैट, ऑफ कोर्स आपके प्रीवियस ओनर का जो सैलरी रहता है वो भी देखना पड़ता है आपको, उसका अगर वो लोन पे है ऑलरेडी या लोन क्लियर हो चुका है, उसके डॉक्यूमेंट स्टडी करने पड़ते हैं। फिर शेयर सर्टिफिकेट भी आ जाता है। प्रॉपर्टी टैक्स, इफ इट इज अ इमूवेबल प्रॉपर्टी तो म्यूटेशन एंट्रीज चेक किए जाते हैं, दैट इज लाइक पर्टिकुलर if I have acquired a particular land somewhere, तो उसका जो गवर्नमेंट तहसीलदार या जो भी डिपार्टमेंट में जो म्यूटेशन एंट्री होगी ना, वो मेरे नाम की होगी, लाइक पुराने ओनर की हट जाएगी और मेरे नाम की म्यूटेशन एंट्री आ जाएगी। इट इज लाइक अ 4-digit नंबर एटलीस्ट इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, सो यू हैव टू चेक दैट ऑल्सो। और अगर वो कोई रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है, जैसे कोई फ्लैट है, तो प्रॉपर्टी टैक्स में चला, आई मीन द म्यूटेशन एंट्री का वर्जन इज प्रॉपर्टी टैक्स इफ इट इज अ रेसिडेंशियल फ्लैट और समथिंग। सो उसके चेक आपको यहाँ करना पड़ेगा, अपना जो म्यूनिसिपैलिटी ऑफिस होता है, लोकल जो भी गवर्नमेंट बॉडी होती है, सिविक बॉडी, वहां पे आपको उसका डिटेल्स मिल जाएगा इफ यू लाइक गो देयर एंड आस्क फॉर आरटीआई और समथिंग। तो वहाँ आपको प्रॉपर्टी टैक्स में किसका आपके प्रीवियस ऑनर का नाम है या नहीं, तो वो आपको नाम हटा के फिर जब आप फ्लैट परचेस करते हैं आपको अपना नाम डालना पड़ता है। सो फॉर दैट चेक research you have to conduct, I mean the team of lawyers. Then after that there is also electricity department में whether whose name the land is like owned under, वो भी check करना पड़ता है, whether it will be a residential flat or a big plot of land or something, तो वो भी concern है। Then after that इफ इट इज अ रेसिडेंशियल फ्लैट, आप ब्लूप्रिंट भी देखोगे, वैसे अगर कोई प्रोजेक्ट का प्लॉट है तो आप उसका भी ब्लूप्रिंट देखोगे कि प्रोजेक्ट का क्या ब्लूप्रिंट है, वो भी स्टडी करना पड़ता है जो प्रपोज्ड रहता है आगे। तो उसके लिए भी ये सब कंसर्न्स भी होते हैं, वो चेक करने पड़ते हैं। Then after that I come to litigations and claims. Litigations and claims can be in respect of anything, whether it is a company or it is an immovable property or it is a small flat or something or an IP. Litigation, जैसे मैंने IP के लिए बताया था, it happens mostly in the registry which is located in the registry office only. और बाकी कंपनी का you can डिपेंड करता है कि क्लेम्स कहाँ पे फाइल हुए हैं, whether it is the NCLT, that is Company Law Tribunal, National Company Law Tribunal, or which any other civil court or something that you have to check. वो तो when you ask the company to provide all the documents, उसमें वो मिल ही जाएगा, just that you have to check it कि क्या status है उस litigation का, whether the litigation is just a sham litigation, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो litigation they just file it for the sake of it, उसका कुछ crux नहीं होता, कुछ नहीं होता, तो आपको check करना पड़ता है कि कैसे हुआ है। और बाद में ये सब देखने के बाद आपको देखना पड़ता है कि कोई लाइबिलिटीज नहीं है, आपका जो भी टारगेट है उसका, उस टारगेट सब्जेक्ट का उस ट्रांजैक्शन में कोई ड्यूज इन्वॉल्व नहीं है, कुछ पेंडिंग नहीं है, लाइक क्योंकि इफ देयर एनी रिस्क इन्वॉल्व, कोई इमेजिन लाइक व्हेन आई वाज डूइंग दिस इज माय एक्सपीरियंस आई एम शेयरिंग, and I used to do due diligence that time. Actually in the due diligence process we found out कि like जो एक कोई तो डेवलपर और एक उससे भी पहले का जो ओनर था ओरिजिनल प्रॉपर्टी का, उसमें से एक कोई तो मेंबर के उस डेवलपर प्रॉपर्टी आई मीन डेवलपर फॉर्म के साथ कुछ तो इशू चल रहा था, तो कोई अराउंड 2 crores or something was the amount जो देना बाकी रह गया था। So if that amount was spent, because of that amount like वो ड्यू डिलिजेंस हो नहीं पाया, तो वो स्टडी करना पड़ता है। और वो इतना अंदर था ना उस प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन की कि एक्चुअली वो मिला भी नहीं हम लोगों की, वो भी आफ्टर स्टडिंग इट फॉर अ मंथ और समथिंग वो लूप होल मिला कि ऐसा था इसमें।
तो वो भी जरा देखना पड़ता है, लाइक बिकॉज अदरवाइज कुछ भी अगर गलत इंफॉर्मेशन हमने भी अगर चेक करना रह गया, एकदम क्या बोलते हैं माइन्यूट से भी कोई अगर लापरवाही हो गई ना, तो बहुत लाइक इट विल ऑफ कोर्स गिव यू आल्सो बैड नेम, एंड जो जिसके लिए आपने ड्यू डिलिजेंस कंडक्ट किया उसको भी फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकता है, तो वो आपको देखना पड़ता है उतना. When actually you will also require a translator in certain to study certain documents, क्योंकि especially जो property के documents होते हैं, not necessarily they be in English, क्योंकि जो old documents होते हैं they are mostly either they can be, I mean mostly either in Sanskrit or in Pali में भी होते हैं, जितना मैंने witness किया है. So for that you will have to call some translator also, it's possible. And obviously it is very common fact कि mostly property documents कभी कभी regional languages में भी होते हैं state के, like महाराष्ट्र है तो मराठी में भी हो सकते हैं documents, suppose कर्नाटका होगा तो कन्नड़ा में होंगे, कोई और state होगा तो उस state के regional language में भी होते हैं documents. And in most of the government office जहाँ से आपको ये documents निकालने हैं, obviously the public authorities prefer कि कोई उनका regional language वहाँ पे बात करे, though it's not a norm but like at times it works, so it depends. Then after that, the next thing I would like to cover under this is place of conducting due diligence. कि like ये due diligence का process कहाँ होता है. So like the acquirers lawyers may also require to visit such target company's office. So it depends. कभी कभी means suppose I am a proprietor of a law firm, make due diligence. If I am conducting, I can request them to send all the documents by whatever photocopy whatever. But it's not necessary. कुछ documents इतने confidential होते हैं कि any acquirer or target company also fears कि ये public के पास नहीं जाने चाहिए. So in such a scenario, it is possible कि जो team होती है lawyers की, they will have to visit the target company's office and for the research and there the document, because all documents are usually not even available on public records. सारे इंटरनल डॉक्यूमेंट्स तो कोई एमसीए साइट पे डालेगा नहीं कंपनी के, या दे वोंट बी अवेलेबल विद द एनी तहसीलदार, और इफ इट इज प्रॉपर्टी मैटर इट वोंट बी अवेलेबल विद द लोकल बॉडीज आल्सो लाइक तहसीलदार और सब रजिस्ट्रार व्हिचएवर. तो उसके लिए आपको कंपनी के ऑफिस में ही जाना पड़ेगा. सो ऑब्वियसली वो बताया तो होता है पहले से, इट इज इन्फॉर्म्ड कि लाइक माय टीम ऑफ लॉयर्स विल कम फॉर कंडक्टिंग ड्यू डिलिजेंस. So they will allot you a boardroom or any kind of room जहाँ पे सारे documents आपको लाके देंगे. तो रूम में बैठ के टीम ऑफ लॉयर्स को पूरा for particular hours, maybe on a particular day appointed for this, वो सारे documents you have to just examine them in detail. Then और आजकल जैसे even here आजकल जैसे कोरोना चल रहा है तो obviously during the lockdown time most of the people used to avoid traveling or allowed भी नहीं था. तो ऐसे में ऑब्वियसली बिजनेस तो रुक नहीं सकता है. सो दैट्स व्हाई इन द ऐसे में आजकल वर्चुअल रूम्स भी आ गया. दिस इज अ न्यू कॉन्सेप्ट इन द डिजिटल एज. तो ऑब्वियसली यहाँ पे आप अगर ऑनलाइन, जैसे मैं अभी ऑनलाइन वेबिनार कंडक्ट कर रही हूँ, तो आपको जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं. ऑब्वियसली वो थोड़ा सिक्योर्ड होते हैं कि लाइक ओनली अ पर्टिकुलर पर्सन कैन एक्सेस दोस डॉक्यूमेंट्स बाय पासवर्ड और व्हिचएवर जो भी टेक्निकली यूज कंपनी का सेटअप होगा उसके हिसाब से इन पीडीएफ फॉर्म, सो दैट दे आर नॉट एडिटेड और व्हाटएवर. तो वो डॉक्यूमेंट्स आपको आप अपने घर से भी एक्सेस कर सकते हैं फ्रॉम दैट कंपनीज वेबसाइट और व्हाटएवर दे अलॉट द टीम ऑफ लॉयर्स फॉर दैट पर्पस. सो वर्चुअल डेटा रूम्स आजकल अवेलेबल है. ये कॉन्सेप्ट है. देन नेक्स्ट थिंग व्हिच आई वुड लाइक टू कवर इन दिस इज कॉन्फिडेंशियलिटी. कॉन्फिडेंशियलिटी इज ऑब्वियसली एज आई टोल्ड यू कि ये जो मोस्टली ये जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं ये कॉन्फिडेंशियल नेचर की होती है. ऑब्वियसली कोई बताएगा तो नहीं प्रायर टू कंडक्टिंग अ पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन कि आई एम गोइंग टू कंडक्ट, क्योंकि अगर कल को कुछ इशू निकला तो इट विल गिव अ बैड नेम ऑब्वियसली. तो ये कॉन्फिडेंशियलिटी बहुत नेसेसरी होती है. तो द ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस इज वेरी वास्ट एज आई टोल्ड यू ऑल, एंड इट रिक्वायर्स लॉयर्स sensitive information in sorry not lawyers, sensitive information of the company or whichever the target company of course, which is required to be provided to lawyers. So therefore in most cases parties drop a non-disclosure agreement, जो कि आजकल almost होता है. Even interns are required to sign non-disclosure agreements when they are joining a particular firm for internship or something. So this sets grounds and rules for use and disclosure of any of
the information which is provided to such team of lawyers, whether they are senior lawyers or they are the interns, juniors, or property clerks जो होते हैं, peons होते हैं कई बार. So it depends, but yeah, एक non disclosure agreement जो उस firm का head है उसको तो sign करना ही पड़ता है. Then because it sets the scope and limitation also of the review कि क्या है, क्या information देनी है या क्या नहीं देनी है, और कितना फ्रीडम है एम्प्लॉइज को ये इंफॉर्मेशन पब्लिक में शेयर करने का. क्योंकि अगर कल को इफ एनीथिंग हैपेंस, इफ एनी रॉन्ग इवेंट हैपेंस और कुछ, तो गुडविल खराब हो जाएगा बेसिकली दोनों कंपनीज का. So that is why non-disclosure agreement is very important to prevent the confidentiality. Then the next thing I would like to cover in this process is process key, like obviously the as I told you अभी ये कैसे किया जाता है ड्यू डिलिजेंस मैंने आपको बता दिया कि इसमें क्या क्या इन्वॉल्व है. So the basic crux is like I told you, the process I told you, due diligence क्यों करना जरूरी होता है मैंने बता दिया, to guess the loopholes and all the risk involved in the process of due diligence. कि if a particular transaction happens and बाद में अगर कुछ risk factor आया तो क्या करेगी कंपनी, तो इस सब के लिए तैयार होना पड़ता है कंपनीज को भी. So उसके बाद मैंने आपको people involved with this, then the process, what all documents are required to be examined for a particular type of legal due diligence कि क्या जो transaction होगा, जो target है उस हिसाब से क्या करना पड़ेगा. I told you. So the next process is what after, what next. एक बार due diligence हो जाता है, सब आपके पास information आ गया, right? So after that, what you will do? So once the process of legal due diligence gets conducted, सारा information आ गया जो lawyer के पास है, I'm familiar with what all is the information, what all are the loopholes in a particular transaction. तो अभी क्या करना है आगे? तो अभी एक बार लीगल ड्यू डिलिजेंस सारा बन गया तो एक बार उसके बाद क्या होता है, जो फाइनल रिपोर्ट तो बनाना ही पड़ेगा, पर उससे पहले एक लॉयर भी चेक करता है इसमें क्या क्या इश्यूज है, इसमें से कोई इश्यूज है विच कैन बी सॉल्व, कुछ कंडीशंस ऐसे हैं जो आई थिंक वी कैन डू अवे विद, तो सब भी देखना पड़ता है. सो द फाइनल रिपोर्ट विच इज रिक्वायर्ड टू बी प्रोवाइडेड, उससे पहले जो लॉयर की टीम होती है वो अपने जिसने उसको अपॉइंट किया है, दैट इज द एक्वायरर कंपनी, उससे बात करेगी कि ऐसा ऐसा हुआ है, दिस इज द रिस्क इन्वॉल्व, यहाँ क्लियर है, यहाँ नहीं क्लियर है, ये सब बताएगा उसको. तो उसके बाद एक मीटिंग सेट फिक्स की जाती है between the two companies in probably in the presence of lawyer, that depends. So there they just have a discussion with each other कि क्या क्या issues है, वो क्यों है, फिर जो इश्यूज है उसमें क्या किया जा सकता है, वेदर कोई अगर कोई लिटिगेशन इन्वॉल्व है तो उसका उस लिटिगेशन का स्कोप कितना है, कि वो कितना आगे जाएगा, इफ इट इज अ शैम तो कब तक डिस्पोज होगा, ये सब डिस्कस किया जाता है. या कोई पेंडिंग क्लेम है तो उसके लिए जो कंपनी है, टारगेट कंपनी, वेदर दे विल इंडेमनीफाई फॉर द सेम और वेदर दे विल गेट दैट इश्यू सॉर्टेड बिफोर द ट्रांजैक्शन हैपेंस. So सब डिस्कस करना पड़ता है. आफ्टर दैट ओनली अ कंपनी विल बी एबल टू टेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन कि क्या करना है. और मे बी एट टाइम्स इश्यूज नहीं भी सॉल्व होते हैं, दैट वुड डिपेंड ऑन वेदर द कंपनी agrees to certain demands or doesn't agree to any demand of the acquirer company. तो वो सब तो कहा नहीं जा सकता because it is very complex. All these transactions are usually complex and most of the cases में कुछ ना कुछ loopholes आते ही है. 99% कोई क्लेम्स 100% क्लियर नहीं होती है. कोई भी प्रॉपर्टी या कोई कंपनी, कुछ ना कुछ तो इश्यूज होते ही है हर कंपनी के साथ. इफ लिटिगेशन नहीं होता तो कुछ और इश्यू होता है, या फिर कोई एम्प्लॉय के साथ कुछ और प्रॉब्लम होता है, या कोई क्लियरेंस या कॉम्प्लायंस किया नहीं होता है विद द टैक्सेशन डिपार्टमेंट और एनी अदर डिपार्टमेंट इन्वॉल्व. सो सब इश्यूज होते ही है. सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो डिस्कशन है वो एकदम हेल्दी होना चाहिए, और जो लॉयर है वो इसमें मीडिएटर का रोल प्ले कर सकता है इन पर्टिकुलर केसेस. So that depends on how the two companies are negotiating with each other, their claims or whatever other discrepancies involved in the project. So then what are the possibilities after conducting the due diligence? एक बार due diligence हो गया, final report से पहले सब negotiations हो गया companies के बीच, what after that?
तो उसके बाद पॉसिबिलिटीज रहती है, इट इज अप टू एक्वायर द कंपनी कि वो क्या करेगी। एक बार ये सब डिसीजंस जो दोनों कंपनीज के नेगोशिएशंस हो जाते हैं, लॉयर ट्राइज टू प्ले रोल ऑफ द मीडिएटर, द ड्यू डिलिजेंस कंडक्शन लॉयर आई मीन। तो उसके बाद अगर जो फाइनली जो भी निकलता है रिजल्ट उस मीटिंग का, मे बी देयर मे बी वन मीटिंग और मे बी मोर देन वन मीटिंग, डिपेंड्स। तो उसका जो भी रिजल्ट निकलेगा, वेदर द कंपनी अग्रीज टू डिमांड्स और इट डजंट अग्री टू ऑल डिमांड्स बट इट अग्रीज टू 2 or 3 डिमांड्स, ऐसा कुछ, तो उस पर बेस्ड वो क्लेम उधर जो होता है, लूपहोल जो होता है वो क्लियर होता जाएगा। तो उसके हिसाब से भी फाइनल टाइटल रिपोर्ट बनता है। इट इज a huge document, in most of the cases it's a very huge document। तो वो फिर लॉयर जो टीम ऑफ लॉयर्स होती है वो सबमिट कर देती है टू द एक्वायर कंपनी ऑफ कोर्स व्हिच हैज अपॉइंटेड इट फॉर द पर्पस। तो बाद में जो प्रोबेबिलिटीज होती है, दया नंबर 1, the records can be found very clean and free from any uncertainties or obligations, जो कि like rare scenario, mostly नहीं होता है ऐसा। Then number 2 is there were several irregularities or this I'm just reading, guys. There are several irregularities or risks which may mean that the review turned up with several misrepresentation, that is बहुत misrepresent किया है जो कंपनी है उसने, then made by the target organization। Then in this case the lawyer may advise management or the acquirer to take the following actions, that number 1 is continue with the transaction with necessary precautions। Then either मतलब means the lawyer either tells them कि आप लोग ये precautions ले लो, like कोई indemnity claims हो सकते हैं साइन करने के लिए। That is like what I told you कि lawyer plays a role of a mediator, वो बाद में भी हो सकता है after the final report is submitted। तो बाद में then second point is either lower the bid of the target organization, that is value कम कर दो जो transaction involved है। Suppose I am buying particular firm for I mean rights of any company or something, its shareholders, whatever, stake or shares something। If I am buying it for 1 crore, तो अगर उसमें कुछ problems है तो मैं उसका अपना value कम कर सकती हूँ। Basically, I can buy it for 50 lakhs अगर बहुत problems involved है तो। Then after that you request target organization of any warranties and indemnities, which I told you the necessary precaution involves this also। कोई वारंटीज ले सकते हैं कि अगर कुछ प्रॉब्लम है कल को तो आप हमें कंपेंसेट कर दोगे उसके लिए, या फिर एडवांस में कंपेंसेट कर दो, or give an affidavit because of which we are not in problem if you have created certain issues with any of the companies or whatever aspects, then you are the person who will deal with it in the future also। Then fourth possibility is draft the agreement pertaining to transaction in a manner that it addresses potential damages that may incur in the future as a result of the misrepresentation। तो अग्रीमेंट में वो सारे आपको मेंशन करने पड़ते हैं कि क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं जो पोटेंशियल डैमेजेस है उसके लिए, जो कंपनी है टारगेट कंपनी दैट विल pay incur the losses or whatever if ever they incur in the future। अगर बाद में फ्यूचर में कुछ कंपनी ने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से फ्यूचर में उस पर लिटिगेशन हो सकता है, तो वो कंपनी उसके लिए जो लॉसेस है वो इनकर करेगी। And basically that again means compensation। They will compensate even if the company is owned by me after that। Then the legal counsels have to give a legal opinion obviously। अगर वो company like if it is a title report of a company तो title report से ज़्यादा legal opinion बोलते हैं उसको, but if it is a property matter तो उसको title report ही बोलते हैं। तो ड्राफ्ट करना पड़ता है, इट इज प्रेजेंटेड ऑफ कोर्स, जो मैंने बोला कि फाइनल टाइटल रिपोर्ट ड्राफ्ट करना पड़ता है इन अकॉर्डेंस, और उसके बाद ही डील एग्जीक्यूट होती है taking into consideration all these points, the risks involved। So basically it is like a security। So the issues, I mean this I'm just saying for the this I'm just saying for the lawyers who are like, I mean the law students who are very freshers who like have not like come into this field yet। So the issues mostly legal due diligence है, ये थोड़ा psychological issue है, इसके पीछे की psychology क्या है। तो द मेन थिंग विच रिक्वायर्स, सपोज अब मुझे मिला, मैंने लाइफ में पहले कभी ड्यू डिलिजेंस किया नहीं किसी का एज्यूम, तो मुझे क्या सोचना पड़ेगा कि मैं क्यों कर रही हूँ लीगल ड्यू डिलिजेंस, तो मुझे क्या क्या फैक्टर्स लेने चाहिए मेरे माइंड में।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल पर्पस क्या है लीगल ड्यू डिलिजेंस का, दैट व्हाई यू आर डूइंग लीगल ड्यू डिलिजेंस एग्जैक्टली। देन उसका इंपॉर्टेंस क्या है, एज आई टोल्ड यू, मींस इन दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट उसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्या हो जाएगा अगर मैंने कुछ भी गलत किया या इफ आई गो रॉन्ग एनीवेयर। देन आफ्टर दैट कैसे लीगल ड्यू डिलिजेंस करना है, मींस इन दिस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन स्टेप्स क्या होने चाहिए लीगल ड्यू डिलिजेंस के, हाउ डू आई गो फर्दर विद दिस। क्योंकि लीगल ड्यू डिलिजेंस किसी भी चीज का हो सकता है, जो मैंने भी ये चीजें वो तो एकदम लिमिटेड है, विच आर लाइक मोस्टली लीगल ड्यू डिलिजेंस ये सारे ट्रांजैक्शंस में किया जाता है। बट आजकल यू नो दैट लाइक मैनी ट्रांजैक्शंस आर हैपनिंग, जस्ट लाइक टेक फॉर एग्जांपल, सपोज शाहरुख खान की टीम है कोलकाता नाइट राइडर्स, अभी आईपीएल आने वाला है, तो वो अगर शाहरुख खान को किसी और को बेच देनी है, ही डजंट वांट टू गो फर्दर विद द प्रोजेक्ट वेंचर व्हाटएवर, तो उसमें अगर क्या किसी को दिया है उसने लीगल ड्यू डिलिजेंस, तो क्या करना पड़ेगा, इवन फॉर दैट देयर इज अ लीगल ड्यू डिलिजेंस, देखना पड़ेगा किसी आई मीन द टीम विच इज डूइंग लीगल ड्यू डिलिजेंस और व्हाटएवर, कि उनके कोई क्लेम्स पेंडिंग नहीं है, देन कोई कौन कौन प्लेयर्स है उनके टीम में, हाउ दे आर प्लेइंग, उनका स्कोर रिकॉर्ड क्या है वगैरह, वो सब देखना पड़ेगा। देन दे विल हैव टू चेक कि हु ऑल आर द पीपल इन्वॉल्वड, और उनके किसी के कोई क्लेम्स नहीं है, जैसे बहुत लोग होते हैं राइट, एक क्रिकेट टीम भी किसी को ओन करनी है तो इसमें कौन कौन है, किस किस का स्टेक लगा है, किस किस ने क्या क्या कंट्रीब्यूट किया है उस टीम में। देन वो टीम जिसको अभी बेचने जा रहे वो भी ऐसे तो लेगा नहीं, उस टीम का रिकॉर्ड क्या है, कितना जीती है देखेंगे, फिर किसी प्लेयर का रिकॉर्ड, फिर गवर्नमेंट रेगुलेशंस भी आ जाते हैं, लाइक बीच में जैसे बैन हुआ था कुछ प्लेयर्स पे कुछ कंट्रीज के, तो वो भी देखना पड़ता है कि गवर्नमेंट के साथ कुछ इश्यू नहीं होना चाहिए इन द फ्यूचर, तो वो सब भी देखना पड़ता है। सो दिस इज ऑल द साइकोलॉजी बेसिकली, कि हाउ यू विल गो फर्दर विद द प्रोसेस, क्या क्या आप चेक करोगे, क्या क्या डालोगे, क्या क्या इंक्लूड करोगे अपने टाइटल रिपोर्ट में, सो वो भी देखना पड़ता है। देन व्हाट हैपेंस आफ्टर ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस गेट्स कंप्लीटेड, जो कि मैंने आपको बताया है, बट इट विल डिपेंड ऑन एवरी, जो ट्रांजैक्शन है उस पर डिपेंड करता है वो। मैंने जो बताया वो मोस्टली या तो कंपनीज को इन्वॉल्व करेगा, फिर प्रॉपर्टी जो मर्जर एक्विजिशन है उसको इन्वॉल्व करेगा, आईपी मैक्स टू मैक्स। बट जो मैंने अभी एग्जांपल दिया, कोई आईपीएल की टीम किसी को लेनी है, तो उसमें का अगर कुछ सपोज प्रॉब्लम है किसी प्लेयर के साथ, या किसी प्लेयर ना कोई केस चल रहा है किसी प्लेयर का उसी के टीम पे, तो आगे क्या होगा, कैसे होगा, या बीच में जो दो पार्टनर्स है, सपोज लाइक शाहरुख खान और जूही चावला है कोलकाता नाइट राइडर्स के, सो इफ देयर एनी क्लेम्स पर्टेनिंग टू एनी डिस्प्यूट्स आर गोइंग ऑन बिटवीन देम, तो ऐसी किसी टीम को खरीदना कोई कितना प्रीफर करेगा, ये भी सोचना पड़ता है। देन चेकलिस्ट, जैसे मैंने आपको बताया है पहले, दिस आई एम जस्ट डूइंग फॉर रिविजन पर्पस, कि अगर किसी को कुछ छूट गया है किसी का तो वो वापस रिवाइज कर लेगा, बिकॉज आई नो आई एम गोइंग टू फास्ट डेफिनेटली। तो या फिर पब्लिक डॉक्यूमेंट्स जैसे मैंने आपको बताया, विच आर अवेलेबल ऑन द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन बेसिक डॉक्यूमेंट है, अगर ये नहीं है तो कंपनी लीगल नहीं है, समझ जाओ। फिर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये भी बहुत नेसेसरी होता है, बिकॉज दिस फिक्सेस द लाइबिलिटीज एंड मेनली द ऑब्जेक्टिव्स, जो प्रोमोटर्स के क्या ऑब्जेक्टिव्स है ये कंपनी स्टार्ट करने के पीछे। फिर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है एओए, दैट like gives what all is the I mean duties of the directors, the other people involved, promoters, उनके liabilities क्या है, like this is like a rule book of a company. Then date of last date when the balance sheet was filed, that is for the financial purpose, देखने के लिए कि whether the company is running fine basically. फिर authorize or paid up capital company का कितना है, that is like just कि if I am purchasing something तो उसका actual value कितना है, how much profit does it make in a particular year. Then directors information होता है, एवरी डायरेक्टर उसका इंफॉर्मेशन, उसका अपॉइंटमेंट कब हुआ, फिर वो कितने कंपनीज में और है, उसका पर्सनल आई मीन पर्सनलाइजेशन, व्हाट हाउ द गाइज का कुछ इश्यूज नहीं है कंपनी के साथ, फिर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कितने हैं, विमेन डायरेक्टर्स कितने हैं कंपनी में, वो सब देखना पड़ता है। देन लास्ट एनुअल जनरल मीटिंग, इसके माइन्यूट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि व्हाट ऑल वाज डिस्कस्ड इन द जनरल मीटिंग ऑफ अ कंपनी। फिर लोन्स ऑफ द कंपनी, ये मैंने कवर नहीं किया था इन द मीटिंग, तो लोन्स ऑफ द कंपनी ऑब्वियसली कोई, एज आई टोल्ड यू, कि कोई पेंडिंग ड्यूज नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता है, कुछ मॉर्टगेज होगा कंपनी का, तो जो एक्वायर करेगी उस कंपनी को उसका लॉस होगा इन द फ्यूचर। तो ये सारी इंफॉर्मेशन ऑब्वियसली एक्वायरर को पता होनी इज लाइक वेरी नेसेसरी। देन आईपी इंफॉर्मेशन, कोई कंपनी का आईपी राइट्स है तो उसका आईपी राइट्स को लेके क्या
इश्यूज है वो सब भी पता होना चाहिए, और whether the IP is completely clear from any encumbrances or any other things, वो देखना पड़ता है। फिर लिटिगेशन, एज आई टोल्ड यू ऑल दिस वी कवर्ड अप, कि कोई लिटिगेशंस नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर लिटिगेशन होगा तो, अगर पेंडिंग लिटिगेशन होगा तो ऑब्वियसली वो लिटिगेशन चलाना will be the liability of the acquirer firm after the process happens. Transaction takes place के बाद ये कंपनी को सारा लिटिगेशन बेयर करना पड़ेगा, and nobody likes litigation mostly. तो वो देखना पड़ता है, या कोई लिटिगेशन है जो एकदम एज आई टोल्ड यू ऑल की बस फॉर द नेम सेक है, कुछ लोग डालते रहते हैं लिटिगेशन फॉर द नेम सेक, कुछ मतलब नहीं होता है, तो वो देखना पड़ता है कि ये लिटिगेशन कितना है एक्चुअली, इसका मीनिंग है या ये जस्ट नाम का लिटिगेशन है, वो भी देखना पड़ता है। फिर इनकम टैक्स रिकॉर्ड्स चेक किए जाते हैं, ये भी मैंने कवर नहीं किया था बिकॉज ये मोस्टली लॉयर्स का एरिया नहीं होता है, बट आई एम जस्ट मेंशनिंग दिस हियर, क्योंकि मोस्टली ये सीए का ये रहता है, एरिया रहता है, या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जो टैक्सेशन लॉ पर्टिकुलर रहते हैं उनका रहता है। तो इनकम टैक्स रिकॉर्ड्स भी चेक किए जाते हैं कि कितना फाइलिंग बराबर रिटर्न्स किए हैं या नहीं, वरना ऑब्वियसली द एक्वायरर विल बी इन द प्रॉब्लम इन द फ्यूचर फ्रॉम द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, कि अगर बराबर से टैक्स वगैरह पे नहीं किया है, रिटर्न्स नहीं दिखाए हैं, तो इट विल कम अपॉन द एक्वायरर इन द फ्यूचर, तो चेक करना पड़ता है। फिर एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स चेक किए जाते हैं, आई टोल्ड यू ऑल कि कोई एम्प्लॉय का कुछ इश्यू नहीं चल रहा है किसी कंपनी के साथ, आई मीन द टारगेट कंपनी के साथ कुछ इश्यू नहीं चल रहा है। फिर व्हाट ऑल आर द, मतलब अदरवाइज भी देखना पड़ता है, कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट भी आजकल ये इम्पोर्टेंट हो गया, उसका भी देखना पड़ता है कि एज एन सेक्सुअल हैरेसमेंट केस नहीं है, ये भी देखना पड़ता है, क्योंकि इट गिव्स अ बैड नेम टू द एक्वायरर कंपनी ऑफ कोर्स लेटर इफ द ट्रांजैक्शन हैपेंस, तो देखना पड़ता है। और एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स भी सारे चेक किए जाते हैं, अकॉर्डिंगली एम्प्लॉय के कॉन्ट्रैक्ट्स भी देखे जाते हैं, देन इट आल्सो इन्वॉल्व्स दिस एम्प्लॉय, उनका पीएफ एक्सेट्रा, कि वेदर इट इज गिवन ऑन टाइम, उसके सारे कंप्लायंसेस किए हैं या नहीं, ये भी देखना पड़ता है। फिर शेयर होल्डिंग पैटर्न, एज आई टोल्ड यू ऑल की वो शेयर होल्डर्स कितने हैं वो देखना पड़ेगा, हर एक की शेयर्स कितने हैं, कौन से टाइप के शेयर्स है, then whether all the necessary securities are there, whether the company is listed with the अपना जो stock exchange है वो सब भी देखना पड़ता है, और फिर accordingly the acquirer will take decision of course, because as I told you all कि company restructuring is a big thing, और उसमें बहुत crores of rupees are involved in these transactions, तो कोई ऐसी तो risk लेगा नहीं, it will take like बहुत time लगता है। First of all, this process only takes around say maybe 6 to 8 months depending on whether how much the documents are clear or they are not clear, तो उसके बाद फिर और जो एक्वायरर कंपनी होती है वो और टाइम लगाती है, इन प्रैक्टिकल वर्ल्ड और टाइम लगाती है सोचने के लिए, उसके बाद वो डिसीजन होता है कि लाइक लेना है तो कैसे लेना है, कितना अमाउंट पे करना है एक्सेट्रा, वो सब तो अपना कमर्शियल, दैट ऑल कम्स इनटू कमर्शियल एस्पेक्ट, जस्ट आई एम टेलिंग यू फॉर इंफॉर्मेशन। देन चेकलिस्ट फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी, as I told you all, history of the property of at least last 30 years, but इससे भी ज़्यादा पुरानी history check करो तो it's like fine, from whenever it is available you should check. Then after that, sale and sale agreements, sale deeds, lease agreements and lease deeds. Deeds और agreements में फर्क होता है guys. Deeds मतलब most of you all will know since you all are lawyers, but I'm just saying this. Deeds deed बोलते हैं जब आप उसकी पूरी रकम दे देते हो, when you pay it entirely वो deed होता है, and if you are like कोई लोन पे ली है प्रॉपर्टी and if you are going to make payment in installments, मतलब वो लोन ही हो जाता है, तो अब एग्रीमेंट बोलते हैं। तो ये मेन फर्क है डीड और एग्रीमेंट के बीच का। In deed you pay the entire amount at once and you make the sale deed. In agreements आप लोन पे प्रॉपर्टी लेते हो तो वो एग्रीमेंट होता है, मीन्स यू हैव नॉट मेड द फुल पेमेंट एट वंस, तो वो चेक करना पड़ता है, उसमें भी किसी का लोन पेंडिंग है नहीं पेंडिंग है वो भी देखना पड़ता है इफ इट इज एन एग्रीमेंट। फिर म्यूटेशन रिकॉर्ड्स, आई टोल्ड यू ऑल, म्यूटेशन रिकॉर्ड्स इज फॉर द प्लॉट ऑफ अ लैंड, और उसका जो वर्जन है, लोअर वर्जन, दैट इज व्हेन यू आर परचेसिंग अ रेसिडेंशियल फ्लैट और समथिंग, तो उसका वर्जन प्रॉपर्टी टैक्स होता है, तो वो चेक करना पड़ता है कि उसमें नाम किसका है। अगर पहले, आई मीन इफ द म्यूटेशन रिकॉर्ड्स आई एम टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलरली, अगर आपके जिससे आप लैंड खरीदे उसका रिकॉर्ड नहीं है और म्यूटेशन रिकॉर्ड में उसके पहले के जो ओनर थे उसका रिकॉर्ड है, तो वो आपको बोलना पड़ता है, मेंशन करना पड़ता है इन द टाइटल रिपोर्ट, क्योंकि फिर ये अगर आपका जो कंपनी है, टारगेट कंपनी, वो मानती है ये म्यूटेशन रिकॉर्ड्स हटाने के लिए पुराने ओनर के, उसकी जगह अपने नाम का म्यूटेशन रिकॉर्ड एंटर करने के लिए, तो ही फिर मोस्टली
जो एक्वायरर कंपनी होती है वो आगे जाती है फॉर परचेसिंग द लैंड और व्हाटएवर। फिर पावर ऑफ अटर्नी चेक करनी पड़ती है, बिकॉज ऑब्वियसली what is power of attorney? Power of attorney is like I am giving a particular right to a person to enter in a certain transaction. Because I am a big firm, I have no time for this. So I will appoint a particular person in a particular part of it, whichever city. तो वहां पे वो बंदा होगा जो मेरे लिए साइन करेगा व्हेन आई वांट टू एंटर इन अ पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन। तो डॉक्यूमेंट वेदर इट इज रजिस्टर्ड और नॉट रजिस्टर्ड चेक करना पड़ता है। बिकॉज जस्ट प्लीज टेक नोट ऑफ दिस, अगर पावर ऑफ अटर्नी किसी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन के लिए होती है, स्पेशली फॉर सेल और समथिंग, देन इट हैज टू बी कंपल्सरीली रजिस्टर्ड। अगर रजिस्टर पावर ऑफ अटर्नी अगर रजिस्टर्ड नहीं होगी, देन वन इट इज नॉट एडवाइजेबल टू एंटर, क्योंकि आपका बेसिकली डॉक्यूमेंट ही रजिस्टर्ड नहीं होगा। आप रजिस्टर करोगे राइट जो डॉक्यूमेंट होगा, तो रजिस्ट्रेशन ही नहीं होगा उसका अगर पावर ऑफ अटर्नी रजिस्टर्ड नहीं होगी तो, क्योंकि एक्सेप्ट ही नहीं हुआ सिग्नेचर फॉर द ओरिजिनल ओनर ऑफ एनी पर्टिकुलर पर्सन जिसको उसने नॉमिनेट किया होगा। तो पावर ऑफ अटर्नी बीइंग रजिस्टर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ इट इज कंसर्निंग इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन। देन नेक्स्ट पॉइंट इज ड्यूज विच मे बी पेंडिंग, एज आई टोल्ड यू कि ड्यूज अगर है पेंडिंग तो कोई खरीदेगा ही नहीं इन फर्स्ट प्लेस, तो प्रॉपर्टी मोस्टली नहीं खरीदते, और एटलीस्ट खरीदते भी है तो वो दिमाग में होनी चाहिए बात, सो इट हैज टू बी एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन, तो वो पॉइंट देखना पड़ता है। फिर एनए अप्रूवल, आई टोल्ड यू ऑल कि कोई एग्रीकल्चरल लैंड पे यू कैन नॉट कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग और एनी कमर्शियल थिंग, सो एनए अप्रूवल इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट अथॉरिटी कंसर्निंग एनी पर्टिकुलर एरिया। फिर लिटिगेशन पेंडिंग, विच आई टोल्ड यू, कोई लिटिगेशन पेंडिंग नहीं होना चाहिए किसी भी जमाने में, एटलीस्ट 30 years पुराना हो सकता है एक बार तो चलेगा, क्योंकि लिमिटेशन पीरियड जा चुका होता है। मीन इफ इट इज अ लिटिगेशन जो फ्यूचर में फाइल हो सकता है ऐसा लगता है तो, पर ऑलरेडी जो पेंडिंग लिटिगेशन होता है वो अगर चल रहा है तो यू विल हैव टू चेक कि इसका स्टेटस क्या है, वेदर द लिटिगेशन मेक्स सेंस और इट डजंट मेक सेंस। फिर वो ओनर तय करता है वेदर आई वांट टू टेक द रिस्क even after having litigation on the land, or I don't want to take the risk, तो ओनर पे डिपेंड करेगा। फिर देयर आर इंडेमनिटीज इफ एनी प्रोवाइडेड, कि कोई इशू चल रहा है उसके लिए अगर वो ओनर तैयार है इंडेमनिटीज दिए है ऑलरेडी या नहीं दिए है, देखना पड़ता है। तो एनवायरमेंटल रिपोर्ट्स, एज आई टोल्ड यू, कि सब एनवायरमेंटल कंप्लायंसेस की है ये देखना पड़ता है कि वो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉपर्टी है वो किसी सेंसिटिव जोन में नहीं आ रही है, तो वो सब देखना पड़ता है। फिर CRZ इज ऑल्सो एन इशू। CRZ मीन्स जो अपने कमर्शियल इसके जोन्स रहते हैं, पर्टिकुलर जोन्स रहते हैं, वी कैन नॉट कंस्ट्रक्ट एंड कमर्शियल। कुछ जोन्स ऐसे रहते हैं जो मोस्टली बहुत कमर्शियल होते हैं, जैसे अपना इन मुंबई इफ यू आर स्टेइंग तो अंधेरी का जो एरिया है, अंधेरी एंड बिटवीन अपना जो वर्सो अंधेरी का जो एरिया है जहाँ मेट्रो लाइन बना है, दैट इज अ CRZ। उसको CRZ का सर्टिफिकेट मिला हुआ है गवर्नमेंट से, तो वो देखना पड़ता है। जहाँ एयरपोर्ट वगैरह सब कंस्ट्रक्टेड होता है तो सब चेक करना पड़ता है व्हेन यू आर एक्वायरिंग अ लैंड फॉर व्हाटएवर पर्पस ऑफ योर्स इज फॉर दैट फॉर परचेसिंग दैट लैंड। देन रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज, एज आई टोल्ड यू ऑल, कि उसमें क्या क्या देखना पड़ता है। इट इज लाइक वेरी बेसिक कि फर्स्टली तो लोन क्लियर है या नहीं, अगर है नहीं है क्लियर तो कितना, फिर शेयर सर्टिफिकेट चेक करते हो आप, फिर कंस्ट्रक्शन कमेंसमेंट सर्टिफिकेट और ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट रहता है। कंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट भी रहता है, बट इफ ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट इज देयर तो बाकी सर्टिफिकेट्स के यू जस्ट नीड टू चेक फॉर द सेक ऑफ इट। एज आई टोल्ड यू, जो सपोज आई एम परचेसिंग अ फ्लैट ऑन 11th फ्लोर और समथिंग, तो 11th फ्लोर के लिए गवर्नमेंट अथॉरिटी ने आपको ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट दिया है या नहीं, ये आपको चेक करना पड़ता है। क्योंकि कुछ केसेस में ऐसा होता है गाइस कि ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट इज ओनली टिल 7th फ्लोर और समथिंग, और उसके ऊपर के फ्लोर्स होते हैं सारे इलीगल हो जाते हैं। तो उसके लिए अगर OC ना हो देन डोंट परचेज सच फ्लैट। तो आप ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट प्लीज देखो व्हेन यू आर, दिस आई एम जस्ट सेइंग फॉर इंफॉर्मेशन, लीगल ड्यू डिलिजेंस आर डिफरेंट थिंग, बट कुछ केसेस में आप पर्सनली अपना भी एक लीगल रिसर्च करते हैं, स्पेशली इफ यू आर योरसेल्फ अ लॉयर। सो दैट्स आई एम सेइंग कि ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट अगर नहीं होगा पर्टिकुलर फ्लोर के लिए, तो फ्लोर का फ्लैट आप मत खरीदो। सो दैट इज द थिंग। फिर उसके बाद बाकी रेसिडेंशियल फ्लैट्स में व्हाट कम्स इनटू कंसर्न इज ऑब्वियसली बाकी उसका की स्ट्रक्चर कैसा है, कोई ड्यूज पेंडिंग नहीं है किसी पुराने ओनर के, अगर
इफ इज स्पेशली डिक्लेयर्ड इट, कोई मेंटेनेंस उसके क्लियर है वगैरह, वो सब देखना पड़ता है. दैट्स लाइक वेरी नॉर्मल थिंग्स. देन चेकलिस्ट फॉर आईपी, एज आई टोल्ड यू हिस्ट्री ऑफ दैट आईपी की ओरिजिनली वो आईपी किसने मतलब कब ओरिजिनेट हुआ था बेसिकली, देन वो किससे कितना डिवॉल्व हुआ है, कितने लोगों ने उसको पहले खरीदा है, देन ऑल द नेसेसरी पेपर वर्क दैट कम्स विद इट, जैसे कि असाइनमेंट एग्रीमेंट है, लाइक असाइनमेंट फॉर एन आईपी कि मेरा आईपी है, मैंने ओरिजिनेट किया, मैंने किसी को बेच दिया, तो उसका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है दैट इज असाइनमेंट एग्रीमेंट. यूजुअली इट इज एन एग्रीमेंट जिसकी वजह से द पर्सन विल गिव मी मनी व्हाट एवर आई एम डिमांडिंग फॉर द ग्रांटिंग माई आईपी लाइसेंस टू दैट पर्सन, कि आप जो करना है करो, इसका आपकी मर्जी. तो चेक करना पड़ता है. देन क्लास ऑफ आईपी ऑल्सो कम्स इनटू कंसिडरेशन कि वो कौन से क्लास में रजिस्टर्ड है ट्रेडमार्क रजिस्ट्री के साथ. अगर ट्रेडमार्क है तो या पेटेंट का कुछ और रहेगा क्लास, तो उसका वो भी चेक करना पड़ता है, जो भी कैटेगरी है. फिर लिटिगेशन एंड डिस्प्यूट कंसर्निंग एन आईपी कि वो कहाँ मोस्टली रजिस्ट्री में होते हैं, बट डिपेंड्स, अगर वहाँ पे किसी को अपील फाइल करनी होगी तो बाद में वो अपर कोर्ट में जाएगी, दैट इज हाई कोर्ट मोस्टली. तो फिर चेक करना पड़ता है कि क्या स्टेटस है. चेकलिस्ट फॉर द रेसिडेंशियल प्रेमिसेस, दिस आई हैव ऑलरेडी कवर्ड बट आई एम जस्ट सेइंग अगेन. सेल एग्रीमेंट ऑफ द ओनर जो बेसिक होता है, फिर कमेंसमेंट सर्टिफिकेट एंड कंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट, ये सेकेंडरी होता है. फिर ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द लास्ट थिंग विच यू शुड चेक इफ यू आर परचेसिंग अ फ्लैट. देन शेयर सर्टिफिकेट वेदर है या नहीं आपके पुराने ओनर के पास. देन रजिस्ट्रेशन ऑफ द सोसाइटी, या दिस एस्पेक्ट आई हैड नॉट कवर्ड, दैट्स आई मेड दिस स्लाइड for revision purpose. Registration of the society, whether the society is registered. Mostly अगर नई सोसाइटी रहती है जिसमें बिल्डर अग्रीमेंट रहता है, वो तो रजिस्टर्ड नहीं होती है. लेकिन अगर कोई सोसाइटी है लाइक विच इज फ्रॉम 20-30 years, तो वो मोस्टली रजिस्टर्ड रहती है. तो उसका कन्वेंस है या नहीं, उसका वो रजिस्टर्ड है या नहीं सोसाइटी, बेसिकली विद द जो बायलॉज फिर कम इनटू प्लेस इफ इट इज रजिस्टर्ड विद द societies whichever the authorities in your local area. Then RERA approval, I told you, which is a new aspect. 2017 में, I guess 2016 में it has been introduced कि अगर आप कोई बिल्डिंग या कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो उसका आपको पहले RERA लाइसेंस होना जरूरी है. तो बिकॉज यू नो प्रॉपर्टी मैटर्स आजकल बहुत कुछ ना कुछ होता ही रहता है उसमें, आइदर लीगल और इलीगल डिपेंड्स. तो इसके लिए आजकल RERA इज लाइक वो एक पर्टिकुलर लाइसेंस नंबर रहता है, तो उसके अंदर अगर रजिस्टर्ड है देन यू कैन अंडरस्टैंड कि ये प्रॉपर्टीज आर ओके फॉर परचेसिंग. देन नेक्स्ट इज टाइटल रिपोर्ट. अगर कोई रेसिडेंशियल फ्लैट है तो टाइटल रिपोर्ट ऑलरेडी मोस्टली जो आपके पुराने ओनर का जो ये रहता है ना, सेल डीड, सेल अग्रीमेंट व्हाटएवर, तो उसमें टाइटल रिपोर्ट ऑलरेडी रहेगा उस प्रॉपर्टी का. तो आपको स्टडी करना, मोस्टली यू शुड स्टडी, आई मीन. तो टाइटल रिपोर्ट ऑलरेडी उसमें अवेलेबल रहता है. फिर लोन कंप्लीशन डॉक्यूमेंट, एज आई टोल्ड यू, अगर लोन लिया है आपके प्रीवियस ओनर ने तो लोन कंप्लीट हो गया है उसका, तो डॉक्यूमेंट यूजुअली आपको मांगना चाहिए. फिर पार्किंग प्लेस का स्लॉट भी आपको चेक करना होता है, वेदर यू आर परचेसिंग अ पर्टिकुलर फ्लैट इन सम नाइस हाई फंड कॉम्प्लेक्स, तो उसका पार्किंग स्पेस है या नहीं है, तो कितना है, तो वो देखना पड़ता है कहाँ पे है, मतलब कितना अवेलेबल है पार्किंग. मोस्टली लोग देखते हैं, आई मीन इफ दे डोंट ओन कार इट्स ओके, बट इफ दे ओन कार तो लगता है. फिर बिल्डिंग प्लान चेक किया जाता है, आई टोल्ड इट्स अ बिग ब्लूप्रिंट, मोस्टली आपको पता ही होगा, इट्स अ बिग कार्डबोर्ड साइज का डॉक्यूमेंट. तो आपको देखना पड़ता है कि कितना एरिया है, फ्लोर स्पेस इंडेक्स कितना है ऑन अ पर्टिकुलर फ्लोर, पर्टिकुलर फ्लैट, जो भी स्क्वायर फीट कारपेट एरिया वगैरह वो सब चेक करना पड़ता है. फिर प्रॉपर्टी टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड मेंटेनेंस रिसिप्ट, आई टोल्ड यू, इसमें नाम किसका है वो चेक करना पड़ता है, वेदर आपके प्रीवियस ओनर का है या नहीं. फिर दिस वाज द पार्ट, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ ड्यू डिलिजेंस. तो लीगल ड्यू डिलिजेंस वो तो मैंने आपको बता दिया क्या होता है, और मोस्टली वी आर लॉयर्स तो हमें वही अपना लिमिट उतना ही होता है, दैट इज द थिंग व्हिच कंसर्न्स अस. बट देयर आर सर्टेन अदर टाइप्स ऑफ ड्यू डिलिजेंसेस आल्सो, जो मैं एकदम शॉर्ट में अभी कवर कर दी. फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस व्हिच आई टोल्ड यू ऑल कि इट इज मोस्टली लाइक अपना कितना बेनिफिशियल है कंपनी कोई है, तो फाइनेंशियल में वही आएगा, उसका जो बैलेंस शीट एक्सेट्रा वो सब चेक किया जाता है फ्रॉम सीए पॉइंट ऑफ व्यू. तो ये सब मोस्टली काम सीए करते हैं, सब लॉयर्स मोस्टली नहीं करते मेरे ख्याल से. तो फिर एचआर रहता है, मतलब एचआर इज इन लाइक व्हाट इज द ह्यूमन रिसोर्स, राइट, तो व्हाट इज द वर्क कल्चर ऑफ दैट कंपनी, कितने एम्प्लॉयज है फर्स्ट ऑफ ऑल. तो फिर उनके क्या क्या जो टास्क है, वेदर सब प्रॉपरली कंप्लायंसेस किए जा रहे हैं यानी लेबर लॉस के साथ एक्सेट्रा, वो सब चेक करना पड़ता है.
तो ये भी मोस्टली तो लॉयर्स नहीं करते हैं, बट इट डिपेंड्स, लाइक हर एक कंपनी का अपना अपना रहता है जो भी असाइनमेंट रहता है। फिर टैक्स, आई टोल्ड यू कि टैक्स अगर किसी कंपनी का जो रहता है वो वेदर दे हैव कंप्लाइड विद ऑल द टैक्सेशन लॉज और नॉट, रिटर्न्स फाइल किए हैं या नहीं किए हैं, तो कितना ऑनेस्टली किए है वगैरह, ये सब चेक किया जाता है। फिर आईपी इज अनदर कंसर्न ऑफ आईपी का जो रहता है, मोस्टली आई अग्री कि लॉयर्स ही करते हैं, बट एट टाइम्स इट डिपेंड्स, लाइक कि कोई कंपनी लॉ किसी लॉ फर्म को अफोर्ड कर सकती है, यानी तो कभी कभी क्या होता है आईपी के कुछ एजेंट्स होते हैं हु ओनली डू लाइक आईपी रिलेटेड थिंग्स ओनली, तो लॉयर्स नहीं होते, मे बी दे हैव नॉलेज ऑफ लॉ, इज अ डिफरेंट थिंग, पर वो लॉयर्स नहीं होते, दे आर जस्ट आईपी क्लर्क्स, आईपी एजेंट्स यू कैन कॉल देम। तो वो आईपी का मोस्टली सर्च वो लोग करते हैं। फिर एनवायरनमेंट का भी, आई मीन एनवायरमेंटल जो कंप्लायंसेस होते हैं उसका भी ड्यू डिलिजेंस होता है, तो वो भी लॉयर्स, कभी लॉयर्स भी करते हैं, कभी क्लर्क्स भी करते हैं, डिपेंड्स, क्योंकि एनवायरमेंटल सारे जो बॉडीज होते हैं वो लाइक दे आर एट डिस्टेंट प्लेसेस, राइट, कभी कभी पूरे स्टेट का एक ही होता है, सो ऐसा सब रहता है, तो इसके लिए ये भी कोई और बंदा करता है अपार्ट फ्रॉम लॉयर इन मोस्ट ऑफ द केसेस। ऑब्वियसली इवन एनवायरनमेंट कंसर्न में अपने को ये भी देखना पड़ता है कि जो अभी ग्रीन लॉ, जो अपनी ग्रीन ट्राइब्यूनल है उसके साथ कोई केस पेंडिंग नहीं है वो कंपनी का, तो वो भी चेक करना पड़ता है व्हेन यू आर लाइक फॉर लॉयर्स ओनली, आई एम सेइंग दिस इन लीगल ड्यू डिलिजेंस, जब ग्रीन लॉ ग्रीन ट्राइब्यूनल के साथ ऑल्सो यू हैव टू चेक कि कोई लिटिगेशन पेंडिंग नहीं है वो फर्म का, और अगर है तो उसका भी स्टेज क्या है वो देखना पड़ता है। एंड लास्ट इज कमर्शियल ट्रांजेक्शन, दैट इज अगेन एज आई टोल्ड यू ऑल कि स्टॉक एक्सचेंज पे या उसका जो भी है, मतलब whether the firstly it is a listed company or not with stock exchange, whichever Bombay Stock Exchange या National Stock Exchange, तो लिस्टेड है या नहीं, अगर है तो उसका वहाँ पे शेयर्स का वैल्यू कितना है वगैरह वो सब देखना पड़ता है। तो ये भी काम मोस्टली लॉयर्स तो नहीं करते हैं, मोस्टली ये सब काम वो शेयर ट्रेडर्स या ब्रोकर्स वगैरह वो टाइप की पब्लिक करती है। Then the process post due diligence, I know I have taken this already, but I'll just revise it कि आप लोगों के माइंड में भी ये थोड़ा फिक्स बैठ जाए अगर किसी को कुछ क्वेरी आगे भी है तो। So first of all, title report is presented, I told you all. फिर negotiations are arranged, I mean the title report as a draft title report, not the final. उसके बाद फिर negotiations होते हैं, which are arranged between both the parties in respect of any discrepancies which can be solved by providing compensation or any other way out. According to that, will then final title report will be finalized, एकदम जो रहेगा last stage. और उसके बाद फिर डिसीजन का सवाल है, तो डिसीजन विल बी मेड ऑब्वियसली टेकिंग इनटू कंसिडरेशन ऑल द शॉर्टकमिंग्स। डिपेंड करता है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे अग्री ऑल्सो, या मोस्ट ऑफ द टाइम्स दो जो प्रोजेक्ट होता है वो शेल हो जाता है बीच में। सो ये सब डिपेंड करता है ऑन द कंपनी, वॉट एवर इट्स माइंडसेट इज रिगार्डिंग द टारगेट कंपनी आफ्टर सीइंग द टाइटल रिपोर्ट एंड ऑल द नेगोशिएशंस दैट हैपन इन बिटवीन। तो ये सब है, या एंड नाउ आई वुड लाइक टू answer any questions if any. Can we specialize? Yeah, I have a question. Can we specialize in due diligence? Pranali Putran has asked this. And if yes, how do we do it? Is there much scope in this field? Yeah, so I would like to say there is scope in this field, but iska koi specialization as such koi course nahi hai. Maybe there are diploma course. I mean, in India at least. I'm saying outside India, I have no idea about this. But in India, there are no specialized courses for this, but there are diplomas. ऐसे कोई degree नहीं है मतलब. There may be diplomas which you have to check. But yeah, mostly I would like, this is just a personal opinion about this. आप पढ़ लो, no doubt. कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप डिप्लोमा करते हो तो लीगल ड्यू डिलिजेंस में, बट प्रैक्टिकल एस्पेक्ट आपको तभी समझेगा व्हेन यू लाइक लिटरली डू इट। लीगल ड्यू डिलिजेंस जब तक आप करते नहीं हो ना, आपको उसका एक्सपीरियंस नहीं आएगा कि ये क्या चीज है। आर यू गेटिंग इट? तो इसके लिए आपको पहले मोस्टली आई वुड एटलीस्ट पर्सनली आई वुड लाइक टू एडवाइज यू कि आप किसी लॉयर के अंडर जो खाली लीगल ड्यू डिलिजेंस करते हैं, ऐसे किसी लॉयर के अंडर कुछ मंथ्स इंटर्नशिप ट्राई कर सकते हो। बैंक का भी होता है, ये मैंने कवर नहीं किया था, बट बैंक का भी ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस होता है व्हेन दे वांट टू अवेल एनी लोन्स टू एनी पर्टिकुलर पर्सन। तो देखा जाता है कि वो क्यों लोन्स मांग रहे हैं, और जिस चीज के लिए मांग रहे हैं वेदर दैट थिंग इज, आई मीन वो जो भी, अगर कोई पर्टिकुलर फ्लैट है समझो तो वो लायबल है क्या, कोई लाइबिलिटीज है उसके ऊपर, वो मॉर्टगेज्ड है ऑलरेडी किसी की, तो वो भी पूरा लीगल रिपोर्ट एक तैयार किया जाता है। तो ऐसे लॉयर्स होते हैं। तो
ऐसे lawyers के under if you want to intern you can intern, that will like make you more ready for entering into this field rather than any I mean any diploma or something, but you can do a diploma to get the basic idea of this, of course. Yeah. The next question is by Hemant Vathore. Why solicitor's title certificate is accepted and not lawyers? What is the difference between the two? And is there any special recognition given to solicitors? As first of all, I don't think ऐसा कुछ है कि solicitors का title report accept होता है, lawyers का नहीं होता है. क्योंकि lawyers का भी title report I think उतना ही valuable होता है जितना कि solicitors का होता है. But हाँ, solicitors के पास mostly जो law firms, I mean, if you are particular big high fund to company like जैसे like whatever Reliance या आदित्य बिरला जैसे है, they will prefer solicitor. I mean, they may prefer a lawyer, but mostly they will prefer solicitor, I assume, या फिर कोई बड़ा law firm जो होता है. Because solicitors are obviously expected to know the whatever जो crux होता है, because lawyers mostly अपना इंडिया में एटलीस्ट ये डिस्टिंक्शन है lawyers और solicitors में कि solicitors जो होते हैं they are not, mostly they don't involve themselves with litigation matters. तो लोग यही सब काम करते हैं like providing legal opinions and all. तो उनका में भी credibility, I mean it depends, it's a mindset. ये कोई ऐसा कुछ law नहीं है यहाँ पे इंडिया में कि lawyer cannot make title certificate and solicitor can, ऐसा कोई law नहीं है, but it's a mindset. So it depends again कौन hire कर रहा है, वो कितना किसे hire कर सकता है. One more question that came. Firstly, was that please share the websites where the due diligence parameters can be checked. ऐसा सच कोई वेबसाइट तो नहीं है, but you all can like do research on like ऐसे normal भी आप due diligence type करोगे बहुत सारा आ जाएगा, but that will be only information again, as I told you all, experience तो नहीं होगा. इसमें एक और aspect involved है. Usually companies also, they also want to disclose the information. I am not saying any foul play is involved here, but it's like कुछ लोग होते हैं जो mislead भी कर सकते हैं, तो इसके लिए you need to be थोड़ा careful. कभी कभी कैसे होता है कि जो लॉयर्स होते हैं ना, वो भी अगर सपोज आई एम अ लॉ फर्म और मुझे मिला है कोई पर्टिकुलर कंपनी का लीगल ड्यू डिलिजेंस, और सपोज पकड़ लो कि वो प्रॉपर्टी मुंबई, आई मीन आई स्टे इन मुंबई, सो मुंबई में नहीं है वो प्रॉपर्टी पकड़ लो कि कोई डिस्टेंट प्लेस में, लाइक इफ इट इज इन पूना और इफ इट इज इन नासिक, वेयर आई कांट गो पर्सनली, दो आई कैन मेक अ विजिट, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. पर जो वहाँ का जो ऑफिस है, वहाँ के जो कोर्ट्स है, वहाँ पे मेरी कोई पहचान होगी नहीं इतनी ज्यादा, तो प्रोबेबिलिटी है कि आई विल अपॉइंट अ लॉ क्लर्क. जो क्लर्क्स होते हैं ना, जो कोर्ट क्लर्क्स होते हैं, लाइक यू ऑल गेट इट, जो कोर्ट क्लर्क्स होते हैं दे विल सर्च इट फॉर मी. तो मैं नहीं सर्च कर पाऊंगी प्रोबेबली, बिकॉज वाकई आई मीन वेरेवर यू आर गोइंग इन अ पर्टिकुलर पब्लिक ऑफिस, ऑब्वियसली थोड़े कॉन्टेक्ट्स लगते हैं. आई एम नॉट डिस्ट्रस्टिंग द ऑनेस्टी ऑफ द पीपल. दे मे बी ऑनेस्ट, दे मे बी डिसऑनेस्ट, पर एक कॉन्टेक्ट अगर रहते हैं ना, उसका काम जल्दी हो जाता है. तो अगर कोई पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट आपको एक्सट्रैक्ट करना है, बिकॉज लिटिगेशंस में इफ दे आर मिसलीडिंग यू, ऐसा आपको लगता है, तो ऑब्वियसली आप कोर्ट जाओगे, वहाँ पे जो भी उनका डिपार्टमेंट जो रहता है, वहाँ आप निकालोगे सारे डॉक्यूमेंट्स. तो निकालते निकालते मुझे तो टाइम लग जाएगा अगर मैं नासिक के कोई प्रॉपर्टी या कोई कोर्ट वोर्ट में वहाँ के सर्च कर रही हूँ. तो कोई वहाँ का लोकल बंदा रहेगा हु इज फैमिली विद द पीपल अराउंड, तो ज्यादा आसान रहेगा.